I'll just check whether we are live or not. बस कोशिश करना कि अगर पीछे आवाज हो रही हो तो म्यूट हो जाए उस वक्त, और जब आपका सवाल हो तब अपने आप को अनम्यूट कर देना. Good evening, everyone. We are live on Karma page today and Visamo Kids Foundation and Lassie Talk for the wonderful series, the Strength Series, episode 3. Today and Visamo Kids Foundation and Lassie Talk for the wonderful series, the Strength Series, episode 3. Today and Visamo Kids Foundation. Just give me a moment. For the wonderful. Yeah. Thank you so much. I think I was on phone, so I was getting the disturbance. Just give me a moment before we start the session. Thank you so much. Lovely. Okay, so today we have, I'll just share the screen with you, student people. I am sure you would have all seen a wonderful creative with 5 panelists today. And in that panelist, I have people like Arpit, a National Law University student. We have with us Urmila. When it comes to Urmila, she is one person who has cleared NEET exams and is now preparing to get into dental. Dental or what? She'll share with us what are her plans. All right. And then we have with us, the next in line is Ami Ben. Ami Ben is one person who has been, you can call it as the student coordinator or Ma. I can say Ami Ma is the most suitable word to showcase her entire time and compassion and energy. एक आप उनका चेहरा ही देखो तो एक माँ का चेहरा ही, वो एक की नहीं सारे बच्चों की माँ है. So she is the boarding in charge and students coordinator as designation, but दिल में सबके लिए माँ है वो. And we have Mr. Vijay Makwana. ये एक बच्चा है जो already JEE advance clear कर चुका है. And इस बच्चे की अगर बात किया जाए तो he is the right now the spotlight उसके ऊपर पूरी है. He has scored 1849 rank in SC category in JEE exam. जी हाँ. एंड जब हम बात करते हैं मयूरी महेश्वरी, आप उसको देखिए, इट्स सच अ कॉन्फिडेंट गर्ल who knows what she wants in his life, and she is a student who has just got admission in Maharaja in MS University Baroda. So ये 3 बच्चे जो है विजय, मयूरी एंड उर्मिला, ये सब अभी 12th के पास आउट बैच है. And we have a little senior among them is Arpit, who is studying in the National Law University and college, and trying to prepare himself for being a very wonderful advocate who can actually work for the cause of the people around him. So immediately I would like to, and I'll just like to talk to everyone that आज हम क्यों इकट्ठा हुए हैं. So it's important that when everyone is talking about mental health, I would like to discuss that it is all about the strength which comes. Mental health, आज मैं strong या मैं weak नहीं हूँ, मैं permanently strong या weak नहीं हूँ, मैं moment में strong या weak हूँ. और स्ट्रॉन्ग एंड वीक मोमेंट्स हर एक की लाइफ में आते हैं, बट इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए, ऐसे लोगों से बातें करनी चाहिए जिन्होंने अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया है. हाँ जी, आज ये जो 4 जन हमारे साथ है, चाहे उर्मिला की, चाहे अर्पित की बात करें, उर्मिला की बात करें, विजय की बात करें या मयूरी की बात करें, ये चारों लोग जो आज हमारे साथ हैं, ये लोग चारों ऐसे हैं जिन्होंने सच्ची में उनकी वीकनेस, कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये सुविधा नहीं है, मैं ये करना चाहता था लेकिन ये नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये करना चाहता था पर नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं ऐसे शहर में रहता नहीं हूँ, मैं ये करना चाहता था पर नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मैं ये करना चाहता था पर नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास ऐसे पेरेंट्स नहीं है जिनके पास विजन है या जो मेरे ड्रीम को समझ सके. सो ये जो वीकनेस को इन चारों स्टूडेंट्स ने आज मैं उनको बच्चे नहीं बोल सकती, दे आर एडल्ट्स नाउ, एंड इन्होंने बच्चों से जब एडल्ट की जो स्टेज है उसके बारे में हम जानेंगे, चाइल्ड फ्रॉम योर चाइल्डहुड टू देयर एडल्ट स्टेज, कि कैसे इन्होंने ये जर्नी अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया है. एंड एक बहुत अच्छा उदाहरण में इट्स अ वन कोट व्हिच आई ऑलवेज लाइक, एंड दैट इज विद द न्यू डे comes new strength
and new thoughts. And strength and growth comes only through continuous effort and struggle. And I'm sure they have enjoyed their struggle, and I'm looking forward to hear from them how they have converted their weakness into their strength. You never know how strong you are until being strong is the only option left. So I'll be asking first Arpit, as discussed. Arpit, first question goes to you. And this question is for Yes. all the panelists, especially the students. Share your dreams. What are you doing now, and what is your plan for future? Because I have not spent much time in introducing each one of you. I would really want people to hear from hear from you and see your eyes and see your face and understand you as person. What are your dreams? What are you doing now, and what is your plan for future? गुड इवनिंग एवरीवन। पहले तो सबसे पहले कर्मा फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, सबको मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर मेरी अंदर की जो बातें सबको बताने के लिए। पहले तो मेरी ड्रीम है कि आपको सबको पता ही है कि मैं पहले अभी लॉ कर रहा हूँ, वो भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से। तो मेरा सबसे पहले मेरी ड्रीम है कि, और मेरे जो है कि एक सक्सेसफुल लॉयर बनना है, और वो भी एक कॉर्पोरेट सेक्टर में। तो मुझे एक कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहता हूँ मैं, और मैं करंटली अभी 5th सेमेस्टर में हूँ, 3rd ईयर स्टूडेंट, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर से। तो मुझे आगे जाके एक एडवोकेट बनना है, वो भी कॉर्पोरेट सेक्टर में। तो बहुत सारे एक हर्डल्स आती है बीच में, जैसे कैसे बैलेंस किया जाए टॉप यूनिवर्सिटीज में। तो वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क रहता है। जैसे पहले ही हम लोग जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले तो लेते हैं, पर यूनिवर्सिटी में जाके हमको बुक्स तो मिलती नहीं है, तो कैसे बैलेंस करना है, कहाँ से पढ़ना है, वो सब मिलता नहीं है। तो मेरा सबसे पहला वो प्लान है कि फ्यूचर में एक सक्सेसफुल लॉयर बनना है, तो एकेडमिक्स बहुत ज़रूरी है, वो भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है स्पेशली, तो उसके लिए। तो मेरा सबसे पहले ये 5 इयर्स जो कोर्स है BLLB, और वो भी टॉप यूनिवर्सिटी से। तो मेरा सबसे पहला वही प्लान है कि एक तो 5 इयर्स खत्म होते होते एक ऐसा एकेडमिक परफॉर्मेंस रखना है, या फिर CGPA ऐसे मेंटेन करना है कि जैसे ही ग्रेजुएशन हो तो कैंपस रिक्रूटमेंट में नाम आना चाहिए और अच्छी पोस्ट पे मिले। यही मेरा सबसे पहली जो प्लान है अभी 5 इयर्स में, वो है। क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है तो अराउंड CGPA 7 के ऊपर ही रहे तो जो चांस मिलता है वो एक कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। एकेडमिक्स तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कॉर्पोरेट सेक्टर में। तो सबसे पहला मेरा वही है कि एकेडमिक्स में टॉप लाना है, क्योंकि एक टॉप यूनिवर्सिटी में जाते हो तो जैसे मैं अभी हूँ हिदायतुल्लाह नेशनल यूनिवर्सिटी पे। तो जो मार्क्स जो डिमांड करते हैं यूनिवर्सिटी और उसके रूल्स के हिसाब से वो बहुत हाई रहते हैं। तो वो एक बैलेंसिंग लाइफ करना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि एक बैलेंस लाइफ टॉप यूनिवर्सिटीज में करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एकेडमिक्स के अलावा दूसरा सब भी करना जरूरी रहता है। तो मेरा वही फ्यूचर में प्लान है कि एकेडमिक्स के अलावा जैसे मूटिंग भी करना जरूरी है, क्योंकि एडवोकेट में मूटिंग बहुत जरूरी रहता है कि मूट करना, जब कैसे कोर्ट में जाना है, प्रोफेशनल एथिक्स मेंटेन करनी रहती है, वो मूटिंग से सीखते हैं। तो एकेडमिक्स के अलावा ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत सारे जगह पे करना है। जैसे नेशनल मूड्स के जो कॉम्पिटिशन्स होती है, जैसे वो सब करना है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में कोलोसिस रहता है, उसमें वो मूटिंग का पूरा अलग से पूरा वो रहता है, कंपटीशन रहता है, जहाँ से पूरे ऑल ओवर इंडिया से सब लोग आते हैं और कॉम्पिटिट करते हैं। दूसरी वही है कि दूसरा इम्पोर्टेंट चीज मेरा फ्यूचर में वही प्लान किया है कि जैसे ईयर वाइज ईयर जो ग्रेजुएशन का एंड तक आते हैं, तो बीच बीच में इंटर्नशिप जो करना है वो एक तो अच्छे कोर्ट या लॉयर्स के अंदर करना है,
और जो इंटर्नशिप करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने के लिए। तो यही मेरा प्लान है कि एक तो एकेडमिक्स जो मेंटेन करना है, उसके साथ अलावा सब जगह पे इंटर्नशिप वो सब भी करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा मेरा प्लान है आफ्टर ग्रेजुएशन की एक एज़ एडवोकेट और सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो आफ्टर ग्रेजुएशन बिसाइड कॉर्पोरेट सेक्टर में कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने के बाद उसमें मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहता हूँ जो यूपीएससी और जीपीएससी के द्वारा कंडक्ट की जाती है। उसमें एक स्पेशल पोस्ट रहती है जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, वो सब इंडस्ट्रियल लीगल ऑफिसर जो लेबर्स के लिए जो लेबर्स के लिए होता है वो उसके लिए एक स्पेशल ऑफिसर रहता है सब जगह पे इंडस्ट्रीज में। तो वो एक कुछ करना चाहता हूँ, सोसाइटी को कुछ देना चाहता हूँ। जैसे डाउरी प्रोहिबिशन के लीगल ऑफिसर में एग्जाम दूँ और क्लियर कर दूँ, तो क्या सोसाइटी को कुछ दे सकता हूँ कि कोई जगह पे डाउरी ना लिया जाए, ऐसा सोसाइटी को कुछ करना चाहता हूँ। तो उसके लिए अभी मेरा प्लान है कि आफ्टर जैसे ग्रेजुएशन का एंड आता है 4th या 5th सेम 4th या 5th ईयर, तो उसी में ही मैं ये सब जो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहती है जैसे लीगल ऑफिसर्स और सके उसी की मैं एग्जाम में प्रिपेयर करूंगा। और यही मेरा अभी अभी जो प्लान है फ्यूचर के लिए, ये अभी इसी के ऊपर बेस पे मैं काम भी कर रहा हूँ और आगे जाके वो ही इम्प्लीमेंट करूंगा अच्छे से। यही मेरा अभी फ्यूचर का प्लान है। अर्पित, कितना अच्छा, एकदम सिंसियर बच्चे की तरह आपने अपना पूरा प्लान बताया। ऐसा लग रहा था जैसे वाकई में आपको पूरा लॉ यूनिवर्सिटी का रंग लग गया है। आपको बता दिया गया है कि ये चीजें करनी जरूरी है और आपने ठान लिया है कि हाँ, ये सब चीजें मैं करूंगा। एंड आई एम श्योर आई वी विश यू अ गुड सक्सेस इन ऑल योर ड्रीम्स टू कम ट्रू। एक छोटी सी बात थी, पूछनी थी अर्पित आपसे, थोड़ा सा अपना चाइल्डहुड के बारे में बताइए, क्योंकि मुझे आपके मेंटर से पता चला कि आप किस फैमिली से आते हैं, आपका घर और ऑल। सो ये इसलिए मैं आप सबको पूछना चाहती हूँ कि आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देंगे, तो क्या होगा, आप जो आगे बात कर रहे हैं सब उस बात से रिलेट कर पाएंगे कि ये बात अर्पित क्यों कह रहा है। मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूँ और ऐसी जगह से आता हूँ जहाँ ना एजुकेशन इतना अच्छा रहता है, और एजुकेशन होता भी है तो कोई ध्यान नहीं देता है। मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ, उच्छल से, जो एक गुजरात महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास है। वहाँ पे एजुकेशन तो मिलता है गवर्नमेंट से, सब फंड सब स्कूल सब कुछ है, पर जो टीचर्स रहती है वो लोग ठीक से पढ़ाते नहीं है या फिर बैठे रहते हैं। तो क्या एजुकेशन, जब मैं यहाँ मेरी चाइल्डहुड थी, मैं एक लकी था कि विसामो के साथ एग्जाम दी। विसामो की एक एग्जाम दी, उसमें क्लियर किया तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, और ये अपॉर्चुनिटी मैंने एडवांटेज में कन्वर्ट कर दी। क्योंकि जो मैं चाइल्डहुड में यहाँ पे घर में ही रहता तो मैं इतना सक्सेसफुल नहीं रहता जितना अभी हूँ। अब जो विसामो में जाने के बाद मेरी चाइल्डहुड ऑलमोस्ट वहाँ पे पूरी बीती है, क्योंकि मैंने सीनियर केजी से लेकर 12th तक वहाँ पे ही मेरी पूरा टाइम स्पेंड किया, तो मेरी मोस्ट ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज एक वहाँ एक पे ही अलग रहती है। एक्सपोजर आपको मिल गया, जो आपको अपना गांव का एक्सपोजर था उससे एक अलग पूरा एक्सपोजर मिल गया, दुनिया खुल गई पूरी की पूरी आपकी। हाँ, क्योंकि हाँ जी, यहाँ सो पे हमारा, हाँ यस अर्पित। जैसे यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स पढ़ने भी जाते हैं तो वो लोग गांव से बाहर नहीं जाते, तो बस और वही जाना भी नहीं इंपॉर्टेंट है, चाहते। क्या है, कई बार स्कूल है, टीचर्स है, गांव में सब कुछ है, लेकिन एक एक्सपोजर जो मिलता है, दुनिया को देखने की जो एक्सपोजर है, वो हाँ। उस गांव के बच्चे भी ले सकते हैं बाहर जाके, खाली अपने आप को सीमित हम्म, ना रखे वहां तक। हाँ, बराबर। अपने अच्छा, आप को हमारे विश्वास साथ, रखना जरूरी है। अरे वेरी गुड, हम आपके पास फिर से आएंगे अर्पित। मैं बात करना चाहूंगी उर्मिला से। उर्मिला जो है अभी उर्मिला मकवाना, उर्मिला आप बताइए, आपका चाइल्डहुड कैसा था, आपके ड्रीम्स क्या है, आप अभी क्या कर रही हैं और आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, मैं उर्मिला हूँ। मैं आनंद से एक इंद्रनंश विलेज है, वहाँ से आती हूँ। इट्स अ स्मॉल विलेज, काफी छोटा सा विलेज है। सो वहीं से आती हूँ। मैंने अभी अभी नीट क्लियर किया है, तो आई एम गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर। और मतलब मेरे ड्रीम है कि आई वांट टू स्प्रेड अवेयरनेस
मतलब पहले तो मैं डॉक्टर बनना मेरे लिए सिर्फ एक नाम जैसा था कि डॉक्टर बनना है। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इट फुली कि ये चीज है क्या। फिर हार्ड वर्क से डर लगा तो फिर मेरे को आर्ट्स में जाना था, ह्यूमैनिटीज की फील्ड लेनी थी, बट विसाम के सपोर्ट से मुझे उन्होंने काउंसलिंग किया, मेरा पोटेंशियल क्या है सब बताया, तो उससे आई डिसाइडेड कि मेरे को अब मेडिकल में ही जाना है। और फिर 2 इयर्स ये मेहनत करने के बाद पता चला कि ये इतना मेहनत किया तब जाके ये मिल रहा है मेरे को, और इतना मिल रहा है तो मतलब है कुछ इसमें। और इधर गाँव में आके ज़्यादा इम्पोर्टेंस पता चला, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर ज़्यादा अहम नहीं देते हैं। इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट और काफ़ी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है इधर। मैंने यहाँ पे ऐसा भी सुना है कि अगर ज़िंदा रहना है तो डॉक्टर के पास मत जाओ। तो अच्छा। हाँ, इट्स दैट डीप। हम्म। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप इसी सब चीज को ज्यादा फैलाओ, मतलब अवेयरनेस की ये कितना इम्पोर्टेंट है, आप डॉक्टर के पास जाना एंड ऑल दैट। सो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज रहेगी अवेयरनेस फैलाना, मेरी जैसी कम्युनिटी, मैं जहाँ से आती हूँ वो सब कम्युनिटीज में। To all the viewers, please, I would like to really tell all the viewers that please understand and from this point of view कि किस माहौल से ये लोग आए। तब जब मैंने आपको कहा कि मैंने इसकी शुरुआत की, इस बात से शुरुआत की कि हाउ दे हैव कन्वर्टेड देयर वीकनेस टू स्ट्रेंथ, यू नो। सो जो कम्युनिटी से आते हैं या जो बैकग्राउंड से आते हैं, वो फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड होने के बावजूद भी आप ये देखिए कि किसी दोनों में से, दोनों का यही है कि वी वांट टू गिव बैक टू द कम्युनिटी, यू नो, from where we belong to, and they have, that is how they have spread their wanted to spread awareness and all. So एक important aspect बहुत हो जाता है कि आप एक डिटरमाइंड है। आप दोनों ने, आपने इन दोनों को सुना, अर्पित और उर्मिला दोनों को सुना। अब हम एक दूसरे बंदे से बात करेंगे, दूसरे लड़के से बात करेंगे जो विजय मकवाना है। और विजय मकवाना अगेन एक ऐसा डिटरमाइंड आदमी है। अब तो ये सब बड़े हो गए, बच्चे तो बोल नहीं सकते, पर हाँ, टीचर के लिए या मेंटर्स के लिए तो हमेशा जिंदगी भर बच्चे ही रहते हैं। तो इसीलिए बार बार मन से में बच्चे ही बात निकल आती है। विजय, आपकी जब मैं बात कहती हूँ सबको, तो मुझे जब विसामो से एक बार मैसेज आया था कि वी आर प्राउड दैट वी गॉट टू दिस ईयर, Vijay is actually has cleared the JEE entrance exam, and he has scored 1849 in the SC category. एंड फिर मुझे मैसेज मिला कि वेट, वी आर स्टिल वेटिंग, आज नीट का रिजल्ट है और हम वेट कर रहे हैं कि हम एक और बात सुनने वाले हैं, और जैसे हमें वो न्यूज मिलेगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और उसी दिन नीट का रिजल्ट था और उर्मिला का रिजल्ट आया, एंड उर्मिला क्लियर्ड नीट। सो इट वाज अ फेस्टिव मोमेंट फॉर आई थिंक बोथ ऑफ यू। सो विजय, आपसे बात करते हैं। आप अपने चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा बताइए, आप अभी क्या कर रहे हैं, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं? सो मैम वैसे आपको पता ही है, बट मेरा नाम विजय है और विजय मकवाना, एंड मैंने JEE एडवांस क्लियर किया। और मेरे पापा गगाभाई मकवाना, उनका ना फार्मर है वो, और मम्मी भानी बहन मकवाना है और वो हाउस वाइफ है। सो मैंने, जब मैं बच्चा था तब तो मुझे उतना पता नहीं था, पर जब मैं अभी देख रहा हूँ तब मुझे पता चल रहा है कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है और कितना ज़रूरी है। और फिर मैंने गांव में भी देखा कि मतलब इसकी क्या ज़रूरत है, और इसलिए मुझे पता चला कि एजुकेशन अभी बहुत एक नेसेसिटी जैसा हो गया है, और सबको मिलनी चाहिए वैसे, क्योंकि आगे आने के लिए सबको मिलनी चाहिए, और बराबर मौके भी मिलने चाहिए। क्योंकि अभी ऐसे बहुत से लोग हैं, मैंने क्लियर किया, बट मुझसे भी बहुत ज़्यादा भी टैलेंटेड, मैं मेरे गांव में देखता हूँ तब भी वो देखता हूँ कि बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बट मौका ना मिलने की वजह से कुछ हो नहीं पाता है, और ऐसे मतलब रह जाते हैं। और एक गाइडेंस जब नहीं मिलती तब लोग मतलब ऐसे छूट जाता है, वैसे टैलेंट निकल जाता है हाथ से, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मेरा, जब मैं बचपन से मतलब 14 इयर्स, बहुत साल होते हैं, 14 इयर्स मैंने विसाऊ में बिताए, और वो बहुत मतलब यूनिक था ये मेरे, मतलब सबकी लाइफ से एकदम अलग था, सबके साथ रहता था, बहुत सारे लोग थे इधर, हेल्प बहुत कर रहे थे, और उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला, और मुझे लगा कि कुछ तो करना चाहिए, इतने सारे लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं तो फिर मुझे कुछ तो करना चाहिए, और मतलब जिस काम के लिए मैं इधर हूँ वो मतलब करना ही चाहिए पूरा। और उसके लिए फिर मैंने मतलब मेहनत की, 2 साल मुझे
लगा मुझे, सबने बोला, सर है मेरे, हेमंत सर है, उन्होंने भी बोला, मतलब उन्होंने एक ऐसे बोला कि ये क्यों जरूरी है तुम्हारे लिए, क्या इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तब मुझे पता चला कि हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, आईआईटी क्या है। और उससे फिर मैंने मन बना लिया था, और फिर आज यहाँ आईआईटी क्लियर किया मैंने, मतलब जेईई एडवांस क्लियर किया। आगे मैं जेईई एडवांस क्लियर के बाद मुझे आईआईटी के मतलब एक अच्छा इंजीनियर बनना है, एक वेल नोन इंजीनियर बनना है। आगे के प्लान्स वैसे ऐसे है कि इंजीनियर बनना है, करिकुलर एक्टिविटीज़ है, को करिकुलर उसमें भी मतलब पार्ट लेना है, वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं फोकस तो मेरा इंजीनियरिंग पर है, बट अदर जो मेरी हॉबीज़ है वो छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि लाइफ में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें आगे मतलब हमें वर्क करने के लिए बहुत वो भी हॉबीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है, तो उसमें भी ध्यान देना है। और बस ये बिल्कुल सही है विजय, आपने जो बोला वो बहुत सही बोला कि यस, आपको जब एक सही टैलेंट खाली टैलेंट धरा का धरा रह जाता है, कहते हैं ना, अनटिल अनलेस उसको सही मेंटरशिप नहीं मिलती, सही गाइडेंस नहीं मिलती। वो बोलते हैं कि हर एकलव्य को एक द्रोणाचार्य चाहिए कहीं ना कहीं, और अर्जुन को ज्यादा करीब से मिला, एकलव्य को दूर से मिला। एंड पर आपको अपना अपना मेंटर तो हर जगह ढूंढ ही लेना है, अगर आप डिटरमाइंड है तो। आपको इन विसामो में मेंटरशिप मिली, किसी और को कहीं और मिलेगी। सो ये हर एक की अपनी अपनी कहानी है। और आपने जो एक बात बोली वो बहुत अच्छी बोली कि हॉबीज बहुत इंपॉर्टेंट है, को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट टू मेक अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। सो कीपिंग दैट इन माइंड, आई वुड लाइक टू नाउ टू कम टॉक टू मयूरी। मयूरी एक लड़की है जो आप देखोगे तो वैसे भी she's studying, she has adopted to study MS यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी। सो आजकल जो बात है कि लोगों को इंटरेस्ट बच्चों को डेवलप हो रहा है साइकोलॉजी में, एंड साइकोलॉजी में भी बहुत ज्यादा फील्ड्स है। बट हम मयूरी से सुनना चाहेंगे कि वो साइकोलॉजी क्यों सिलेक्ट किया उसने, बिकॉज उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे सिलेक्ट करने के लिए। She could have become a doctor as well or a dentist as well, but she made it a point to study psychology. So मेंटल स्ट्रेंथ की जब बात करते हैं, ओवरऑल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो आई थिंक साइकोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम मयूरी व्हाई, what is she doing now, what is her childhood memories, because आप लोग and आप फ्यूचर में क्या करना चाहती है by studying psychology? Okay, so good evening, everyone. My name is Mayuri Maheshwari, and I come from Kutch Bhuj. And right now, I'm doing BA Psychology from MSU University. So I have a very interesting story how I came across psychology. तो बेसिकली जैसे मैम ने बताया कि मैं मेडिकल कर सकती थी, मैं कुछ और कर सकती थी, एंड इनिशियली मेरा प्लान भी वही था कि आई वाज गोइंग टू परस्यू biology, but then slowly and gradually, so I was basically studying psychology with biology, and जब मैं पढ़ रही थी दोनों सब्जेक्ट्स को, तो जब मैं साइकोलॉजी को पढ़ रही थी तो आई कुड फील अ पर्सनल कनेक्शन। सो जब मैंने रियलाइज किया कि डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स तो बहुत सारे मिलेंगे, एंड दैट टू गुड डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, but there are very few people, there are very few qualified psychologists in India, and साइकोलॉजी को इतना इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं जाता है। आज भी अगर देखो तो साइकोलॉजी के बारे में सब ऐसा ही बोलते हैं कि साइकोलॉजी तो कभी भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड। अगर आप यू नो यू हैव टू रियलाइज दैट वो यस, from my personal experiences, in these 2 years, a lot of experiences, and विसामो में भी रहकर बहुत कुछ रियलाइज किया, स्ट्रगल किया, एंड देन आई रियलाइज कि ये एक फील्ड है वेयर वहाँ पे मेरी जरूरत है, तो आई वुड लाइक टू गो देयर। I'm sure everyone would like to come and see your smiling face and your determined eyes, and I'm sure ऐसे साइकोलॉजिस्ट से मिलना सबको पसंद आएगा। ऐसा ना हो कि लोग बार बार मेंटली बीमार पड़ जाए बस आपको मिलने के लिए। नो एंड जी, टॉकिंग अबाउट माय चाइल्डहुड, मैं जब छोटी थी तब जब विसामो में टेस्ट हुआ, तब आई वाज द ओनली पर्सन who was ready to come.
दूसरी सब families, they were not allowing because they were not trusting अपने छोटी सी बच्ची या बच्चे को विसामो में भेजने के लिए. And my father, there were a lot of people who were telling my father कि बच्ची है, वो भी लड़की है, तो मत भेजो इतना दूर, ऐसे कैसे ट्रस्ट करोगे. But then my father did, मतलब उस टाइम पे उन्होंने भरोसा किया, मुझ पे भरोसा किया, विसामो पे, आमी मैम पे भरोसा किया, एंड फिर मुझे भेजा. तो दिस इज समथिंग विच कीप्स मी मोटिवेटिंग एवरी टाइम. कभी भी मुझे लाइफ में ऐसा होता है कि नहीं, अब नहीं करना, छोड़ो, अब नहीं होगा, तो दिस इज समथिंग विच मोटिवेट्स मी कि बहुत लोग हैं जिन्होंने मेहनत की है मेरे पीछे, स्पेशली विसामो. वी आर लॉट ऑफ volunteers, we are a lot of sponsors, we are a lot of donors. तो हमने बचपन से देखा है कि वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं विसामो में. तो वो हमेशा हमारे बैक ऑफ द माइंड रहता है कि वी ऑल्सो वांट टू वन डे गिव बैक द सोसाइटी. जैसे हमें मिल रहा है वैसे वी ऑल्सो वांट टू गिव बैक. तो दैट इज व्हाट माय ड्रीम इज कि मैं अपने लाइफ में एक ऐसा दिन देखना चाहती हूँ वेयर आई फील कि हाँ, अब मैं भी सोसाइटी को दे सकती हूँ. I can give back to the society, and I think when I'll definitely become a good psychologist. So जब मैं बन जाऊंगी तो that is how I want to give back to the society. मुझे psychology को थोड़ा embrace करना है, and I want people to know कि बहुत ज़्यादा beautiful field है. I mean, of course दूसरी सब fields भी अच्छी है, but ऐसा है कि everybody wants to go for medical. अभी हम convinced है कि your choice of the course is perfect. Ami Ben is also now very convinced that your choice of your course and subject is right, and because you are so much you can say attached with it, आप इतना determined हो, आप उसको इतना strongly आप उसको I mean अर्पित, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोर्ट के केस में चल रहा हो कि जब मयूरी बात कर रही है कि बस साइकोलॉजी से अच्छा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है. So I'm sure उसको ऐसा फील हो रहा होगा. So we are convinced that you are carved for psychology, and that's where अमी जी, आपको अब ये सवाल जो कि आपकी जो मेरे साथ बात हुई थी वो यही थी कि कितनी वो कन्विंस थी, डिटरमाइंड थी कि हम सबके बोलने के बावजूद भी शी सेड नो, दिस इज वेयर आई वांट टू बी. एंड वही चीज हम चाहते हैं आज के बच्चों में भी कि वो एक व्हेन यू सी योर ड्रीम, यू आर सो कन्विंस्ड टू कन्विंस एवरीवन अराउंड यू. सो एंड व्हेन यू डू दैट, यू कम you are few steps closer to your dream to achieve it. So आपके लिए एक सवाल है कि can you share what made all four of them work very hard? Because हर एक ने कहा है कि भाई हमारे पे ट्रस्ट किया, इतने सारे लोगों ने हमको सपोर्ट किया, और आई एम श्योर आज हर कोई जो सुन रहा है, आपके हर स्पॉन्सर्स हैं, एवरीवन हु हैज रियली वर्कड हार्ड बिहाइंड यू टू गिव यू ऑल द फैसिलिटीज कि आपको अपने गांव की, आपको अपने घर की याद ही नहीं आए, आपको यही लगे कि बस आपकी दुनिया में आपकी दुनिया बहुत अलग है आपके लोगों से. दुनिया जब आप वापस जब घर जाते हो तो आपको लग रहा है कि आप एक प्रिविलेज क्लास में बिलोंग करते हो. सो अमी बहन, आपके लिए है कि ये चारों को इतना वर्क हार्ड या स्मार्ट वर्किंग के लिए ये क्या हुआ, हाउ कुड यू ऑल मोटिवेट देम, एंड आपने कैसे उनको मोटिवेट किया, और व्हाट मेड देम आल्सो मोटिवेट? बिकॉज उन्होंने तो कहा कि उनका एक था दिमाग में, आई थिंक ये चारों ने एक बात की कि हमारे पीछे इतनी मेहनत की गई है, हम उस मेहनत को वेस्ट करना नहीं चाहते थे. तो आई एम श्योर आपकी आंखें आई एम श्योर इस बात को देख रही है, एंड आपके चारों जो सितारे हैं, सो ये इनमें क्या कॉमन है, क्या उनको लगा कि दे नीड टू वर्क हार्ड, एंड व्हाट मोटिवेटेड देम, एंड हाउ डिड यू डू दैट? मैम, ये चारों बच्चे मैं उनके बचपन से बताती हूँ. जैसे मयूरी आई थी, मयूरी मुझे याद है, मयूरी इतना रोती थी जब आई थी, पेरेंट्स मदर को छोड़ के आई थी, तो उसको इतना रोना आ रहा था. मैम, एक बात, उसको जब स्वीटी कह के बुलाते थे तो भी वो रोती थी. इतनी स्वीट लड़की थी, पर अगर उसको किसी ने स्वीटी बोला, रोना चालू. तो वहां से शुरू होता, मतलब बचपन से शुरू हो गया बच्चों के साथ, बच्चों को संभालना, बच्चों को अपना लगे, घर जैसा लगे, इस तरह से बच्चों को संभालना. और जैसे हमारे खुद के घर के बच्चे हैं, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है. वो फैसिलिटी ये बच्चों को कभी नहीं मिलती है. ये बच्चों को जैसे यहाँ विसामो में कोई प्रोग्राम हुआ, कुछ भी करते, पढ़ते हैं, अपना खुद का काम होमवर्क कर रहे हैं, छोड़ के प्रोग्राम में आके बैठ जाना है. जैसे हमारे बच्चों को रात को 12 बजे भूख लगती, पढ़ते, मम्मी पीछे पीछे घूमती रहती है, बेटा ये खा ले, बेटा ये पी ले, बेटा ये, कुछ भी यहाँ पर
विसामो में नहीं हो रहा था। 7 बजे खाना मिला, खाया, नहीं खाया आपकी मर्जी, मतलब खाना खाया, अब आपको जितनी देर तक पढ़ना है पढ़ो, पर ऐसे कोई रात को पीछे पीछे घूमेगा नहीं। ऐसे सब सिचुएशन में भी ये बच्चे अपना हार्डवर्क, इतना हार्डवर्क ये बच्चों ने किया है। ये विजय मकवाना और उर्मिला रात को 11-11 बजे सर बुलाते थे, हेमंत सर बुलाते थे, चलो पढ़ने आ जाओ रात को 11 बजे, और रात को 11 बजे से 12 साढ़े 12 तक पढ़ते थे। ये मयूरी एकलव्य में पूरा दिन स्कूल से आओ, स्कूल के आने के बाद इतना ढेर सारा होमवर्क, वो होमवर्क खत्म करो, सबमिशन है, ये करो, प्रोजेक्ट सबमिट करो, मतलब मयूरी कहीं दिखती ही नहीं थी। तो ये थोड़ा स्कूल की तरफ से थोड़ा विसामो ने मोटिवेट किया, और ये इतने सारे हर्डल्स के बाद भी ये बच्चे बहुत शाइन हुए। और फिर इतना अपने, वो तो सेल्फ मोटिवेटेड ही था, वो अपने आप ही पढ़ लेता था, उसको कभी मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि अर्पित अब तू पढ़ने बैठ, अर्पित तो अब ये कर। तो ये मेरे विसामो की वजह ये बच्चे खुद मोटिवेटेड थे, बच्चों ने खुद ही बहुत कुछ अचीव किया है लाइफ में। आपको ये बात आज, ये बोलते हैं ना कि हर माँ के लिए जब बच्चा बाहर घर से निकल जाता है और जब घर से निकल के जब वो अपना नाम कमाता है, तो आज आई एम श्योर ये कंफर्ट जोन से बाहर आए हैं, या उन्होंने, एक चीज मैं हमेशा समझती हूँ कि कंफर्ट जोन कभी था ही नहीं, हमारे आसपास भी कभी कंफर्ट जोन था ही नहीं, उन्होंने अपना कंफर्ट जोन खुद क्रिएट किया है, वो बात समझ के, एंड उस कंफर्ट जोन में अपनी ही एक दायरे में उन्होंने एक बात समझी है कि भाई मेहनत करनी है, और हमारे पीछे जो सबके एस्पिरेशंस है। आज हम कहीं, आपने जो बात की बहुत सही बात की कि पैम्परिंग नहीं होता है, और जब पैम्परिंग नहीं होता है तब भी दिल करता है बहुत मेहनत करने का, क्योंकि उसके बावजूद भी देखो, आपने कहा कि इनको कोई पैम्परिंग नहीं करता है, उनको कोई कुछ बोलता नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी एक एक जन को ध्यान है कि हमारे पीछे कितने लोगों की मेहनत है और कितने लोगों के इमोशंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वो एक एक्सपेक्टेशंस हैं, और एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने का एक हर एक को रहता है। आई थिंक कई बार काफी बच्चे इस बात में डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत एक्सपेक्टेशंस है, मेरे से बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेरे पीछे बहुत लोगों ने मेहनत की है, मेरे पीछे बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया है, मुझे स्पॉन्सर किया है, उनकी भी एक इच्छा है कि हम कुछ पढ़े लिखे। कई बार वो हाई एक्सपेक्टेशन में इंसान डिप्रेशन में आ जाता है, और मुझे ये जान के खुशी हुई कि ये बच्चों के कहीं पे भी डिप्रेशन नाम की चीज ही नहीं दिख रही है। They are all bright, they are all confident, they are all smart and ready to work hard and give back to the community. And आज की जो मेंटल्स, जो कर्मा फाउंडेशन जो है, अगेन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ है जो कोशिश करता है कि ऐसे लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करे, ऐसे एनजीओ के साथ कोऑर्डिनेट करे जो सोसाइटी में अच्छा काम करता है। और लास्ट टॉक इज लर्न, एक्ट, शेयर, इंस्पायर, की भी कुछ नया सीखो, एक्शन करो, शेयर करो और इंस्पायर करो। सो इन दोनों का जब हम साथ में हुए, तो हमने जब स्ट्रेंथ सीरीज की बात की, तो इसमें से यही एक मेन इंपॉर्टेंट बात निकलती है कि लाइफ में अपना गोल, अपना धैर्य अगर क्लियर है तो आगे बढ़ो। उसमें फिर 4 बातें मत सोचो कि मेरे पास पैसे है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं सवाल पूछती हूँ अर्पित को। अर्पित, आपको एक सवाल है और आपके पास 2 से 3 मिनट उस सवाल का जवाब देने के लिए। मैं अमिताभ बच्चन की तरह हॉट सीट पे नहीं बैठी हूँ, लेकिन एक सवाल आपको जरूर पूछ रही हूँ कि क्या पैसे इंपॉर्टेंट है टू गेट गुड एजुकेशन? हाउ फार इज मनी इंपॉर्टेंट टू गेट गुड एजुकेशन? बिना पैसे के भी इंसान अच्छा एजुकेशन ले सकता है? या बिकॉज कई बार ये चीज है लोगों के दिमाग में है कि मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे माँ बाप फार्मर है, या मेरे माँ बाप ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सो मनी कितना इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट है तो कितना है? जो मनी, जो आपने क्वेश्चन पूछा गया मुझे, उसका आंसर मेरे हिसाब से मनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक कहावत तो सुनी होगी कि पैसा है तो सब कुछ है। तो मनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है एजुकेशन में, क्योंकि लेस प्रिविलेज जो चिल्ड्रन रहते हैं ना, उनके मम्मी या पापा बहुत कम पैसे कमाते हैं, और एजुकेशन की फीस जो रहती है कॉलेजेस या स्कूल वगैरह जो भी रहता है, उसमें बहुत हाई रहता है। पर्सनली जैसे मैं अभी नेशनल यूनिवर्सिटी में हूँ, तो जो ट्यूशन फीस रहती है नेशनल यूनिवर्सिटी में, वो अराउंड 1.5 लाख जितना रहता है पर एनम। और उसके अलावा भी जैसे मैथ फीस रहती है, और
हॉस्टल फीस जो रहती है वो अलग से देनी पड़ती है, वो अराउंड 30,000 जितना रहता है। उसके अलावा डेली एक्सपेंसेस जो रहते हैं वो पूरे साल में तो निकल ही जाते हैं। तो मेरे हिसाब से जो जिसके जो भी बच्चा रहता है या उनके मम्मी पापा जो इतना कमा नहीं पाते, तो जब ट्यूशन फीस इतनी हाई हो तो वो कितने भी क्यों रात दिन मेहनत ना कर ले तो वो एजुकेशन नहीं ले पाता। तो मेरे हिसाब से पैसा जरूरी है, और पहले से ही सेव करे तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रह जाता है, क्योंकि आगे जाके वही काम आता है। पर मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे गवर्नमेंट हमको जो रिजर्व कैंडिडेट रहते हैं उनको स्कॉलरशिप और सब भी दिया जाता है, पर उसमें वो है कि पहले हमें फीस पे करना रहती है और वो एंड ऑफ द ईयर सैंक्शन करना रहता है। जब ट्यूशन फीस इतनी हाई रहती है तो हम लोग पे ही नहीं कर पाते, तो वो फिर बाद में सैंक्शन हो वो कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि उससे पहले ही वो लोग चार्ज लगा देते हैं कि इतने ड्यू हो गया आपका, इतना हुआ। तो फीस जो रहती है वो इम्पोर्टेंट तो है ही मनी, पर मेरे केस में एक अच्छी बात है कि पहले तो 1 to 12 तक तो विसामो ने सपोर्ट किया, तो उसी के वजह से मैं अभी तो 12th के बाद यहाँ पे हूँ। और उसके बाद जो है एक एनजीओ है आइडिया ए करके, जो एक स्पेशली लीगल फील्ड में वर्क करता है, वर्क लीगल फील्ड में है। तो वो एक एनजीओ है जो विसामो के जैसे ही लेस प्रिविलेज बच्चों को सेंसिटाइज करते हैं, और हर ईयर जैसे 30 to 40,000 बच्चे को सेंसिटाइज किया जाता है। और ये एनजीओ है, ये फाउंड किया है मिस्टर श्यामनाथ बाशिर, जो अभी हमारे बीच में नहीं रहे क्योंकि लास्ट ईयर ही उनकी डेथ हो गई थी। तो उसका विजन अभी भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है बाय सेंसिटाइजिंग एंड आगे बच्चों को लेके जाके वो लोग एक बार वो लोग जैसे ग्रेजुएशन तक मीन्स जब तक डिग्री ना मिले तब तक वो लोग पूरा कॉस्ट बेयर करते हैं, यहाँ से ट्रेनिंग से लेके कोचिंग से लेके जब तक ग्रेजुएशन खत्म ना हो तब तक। और वो लोग जैसे इंटर्नशिप में भी हेल्प करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी money is important thing and we all need to save also. मनी इज इम्पोर्टेंट अर्पित, और आपकी बात केस में देखिए कि मनी आपके पास नहीं था लेकिन आपके पास टैलेंट था। हाँ, आपने जहां पे भी आपने हर वो अपॉर्चुनिटी ली जहां पे आपको टैलेंट एग्जिबिट करने का मौका मिला। और जब हाँ, वो जैसे आई थिंक क्योंकि उर्मिला ने नहीं मयूरी ने कहा कि मैं ही एक अकेली थी जो एग्जाम देने गई विसामो का, बिकॉज विसामो भी आई अंडरस्टैंड हर एक जगह आईक्यू टेस्ट करते हैं और आईक्यू टेस्ट करने के बाद ही बच्चों को अपने विसामो में लेकर आते हैं। तो वो एक हर जगह जगह जाते, काफी जगह गए होंगे, काफी बच्चों को कहा होगा, लेकिन उसमें से कुछ बच्चे क्योंकि आ गए हैं सिर्फ टेस्ट लेने के लिए। अभी के सोसाइटी में जैसे बच्चे रहते हैं वो लोग बहुत टैलेंटेड रहते हैं, पर लेक ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो लोग कुछ कर नहीं पाते, और फिर वही पूरा चलता रहता है, चेन खत्म ही नहीं होती। तो बात वही सही है भाई, बात वही है कि जब आपके सामने अपॉर्चुनिटी नॉक करे तब आपको अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेना है, और आपको कहीं पे भी टैलेंट एग्जिबिट करने का मौका मिले तो वो मौका नहीं छोड़ना है। जब वो आपने आई थिंक दो मौके आपको मिले, एंड आई एम श्योर यू आर लकी टू एंड डेस्टाइन्ड फॉर अ मच बिगर रोल देन व्हाट यू आर डूइंग एट प्रेजेंट। आई एम श्योर 20 साल बाद जब मैं अर्पित से बात करूंगी तो अर्पित वो बात मुझे स्वरूप बताएगा कि गीतिका मैम वो बात बिल्कुल सही थी कि मुझे अगर ये 2 मौके मिले हैं टैलेंट मेरा पोटेंशियल एग्जिबिट करने के लिए, और मुझे दोनों बार रिकॉग्नाइज किया गया है कि आई हैव द पोटेंशियल, एंड दैट इज वेयर आई गॉट स्पॉन्सरशिप इन द फॉर्म ऑफ मनी। सो पैसा किसके पास से आता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा पैसा हाँ, किसी के, हाँ आप क्योंकि पैसा इम्पोर्टेंट है लेकिन या हाँ लेकिन आपको कोई सोसाइटी ना में कोई मिल ही इतने सारे जाएगा। एनजीओज है, जी सोसाइटी में इतने सारे एनजीओज है जो मनी अपने इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर उनके पास वो डायरेक्शन नहीं रहता कि कहाँ पे इन्वेस्ट करे, हाँ, क्योंकि तो आप बहुत अर्पित सारा ये एक पैसा बात एक के पीछे लगाना रहता है। तो वो लोग भी थोड़ा डरते हैं कि वो इसके पीछे लगाएंगे तो वो कुछ करना चाहिए।
ऐसा। सही बात है, एक ऐसा घोड़ा जिसके ऊपर हम रेस लगा रहे हैं तो वो दुनिया में आगे बढ़ना चाहिए। एंड हाँ विद दिस नोट अर्पित, एक बात आपने जो कही वो बहुत सही कही। अब इम्पोर्टेंट ये है कि पैसा इम्पोर्टेंट है, लेकिन काफी लोग हैं जिनकी सपोर्ट से आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर हाँ सकते हो और उनको बता सकते हो कि आपने मेरे पे भरोसा किया, तो आज मैं आपके जैसे ही आगे किसी न सोशल कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करके आगे किसी और को आगे बढ़ने का मौका जरूर दूंगा। सो इसी हाँ इसी पे मैं उर्मिला को ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि हाउ इम्पोर्टेंट इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन फाइंडिंग द राइट टैलेंट एंड सपोर्ट देम फॉर सक्सेस। जो हमने अर्पित ने बात की कि पैसा जरूरी है और किस तरह टैलेंट को, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कितना इंपॉर्टेंट है ताकि राइट टैलेंट को ढूंढे और उनको सक्सेस के लिए सपोर्ट करें। उर्मिला, आपके साथ आई थिंक आपके साथ भी सेम केस हुआ है, सो कैन यू? हेलो, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इसमें, क्योंकि टैलेंट हर जगह पे है, वैसी जगह पे है जहाँ से वो निकल नहीं सकता, और मे बी वहाँ पे वैसे लोग हैं जो उसको पहचान नहीं पाते। तो कम्युनिटी में वैसे लोग होने चाहिए जो वहाँ पे जाए और उसको पहचाने और उसको बाहर लाए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैं अभी डॉक्टर बन रही हूँ, मेरे पेरेंट्स को हैव नो आइडिया कि उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, नीट क्या है, और उनको ये भी नहीं पता था कि ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं। जैसे मेरे को विसामो ने एलन में भेजा, तो फिर ऐसे उनको पता चला, तो फिर मेरे पेरेंट्स किसी और को बताएंगे, तो वो फिर आगे दे विल इन्वेस्ट इन दैट एंड वो भी उसमें बनेंगे। वैसे ही सोसाइटी आगे बढ़ती है, मतलब एक किसी और को, इट्स अ चेन, यू स्टार्ट विथ वन पर्सन एंड दैट स्प्रेड्स। सो कम्युनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट ये टैलेंट को सर्च करने में और उसको आगे बढ़ाने में। So collect your good karmas. I am sure that is what I believe in. कलेक्ट योर गुड कर्मास। कहीं ना कहीं आपके कर्मास भी अच्छे होंगे पास्ट में, कि आप भी ऐसी जगह पे आए जहाँ पे आपके टैलेंट को देखा गया और लोग आपकी तरफ आए। कहीं ना कहीं आई ऑलवेज बिलीव दैट यू अट्रैक्ट गुड वाइब्स, चाहे बच्चों की स्टेज पे हो, एडल्ट की स्टेज पे हो। अगर हमारे कहीं ना कहीं डिजायर्स है, हम लोगों को अट्रैक्ट अपनी तरफ करते ही करते हैं। एंड आई एम श्योर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू नो टू ऑल द कम्युनिटी मेंबर्स कि भाई मंदिर में खाली ऐसे ही पैसे डाल दो या ऐसी जगह पे पैसे डालो जहां पे कोई रिटर्न नहीं है। इन्वेस्ट इन ह्यूमैनिटी, इन्वेस्ट इन स्टूडेंट्स, इन्वेस्ट इन यंग पीपल टू गिव देम राइट एजुकेशन। आपके पास 2 बच्चे हैं, आप 2 बच्चों को अडॉप्ट और कर लीजिए, उनके एजुकेशन को, इफ यू कैन अफोर्ड इट। आई एम श्योर आपके 4 बच्चे एटलीस्ट आपके हाथ में है जो इस दुनिया को सुंदर और बेटर बनाएंगे। सो मयूरी ने जो बात, उर्मिला ने जो बात की वो बिल्कुल सही की कि भी टैलेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन उसके आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टैलेंटेड हैं बट उनको सही मौका नहीं मिला है जैसे उसने उसको मिला है। सो सवाल आता है विजय के लिए। विजय, हाउ विल यू लाइक टू बी अ लाइट हाउस फॉर चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम बैकग्राउंड सिमिलर टू योर्स? बिकॉज कहीं ना कहीं आपको भी ऐसे लोग मिले हैं जो कहीं ना कहीं उनको भी डिप्राइव थे अपनी चाइल्डहुड में, एंड जब उन्होंने कुछ अच्छा हासिल किया अपने मुकाम में तो उन्होंने उसमें कंट्रीब्यूट किया टू गिव बेटर लाइफ टू द अदर नेक्स्ट जनरेशन आल्सो। So how would you like to be a lighthouse? How would you like to inspire others of your community? आप क्या करना चाहेंगे so that आप भी उनको सपोर्ट करें उनके सक्सेस में? तो मेरा मानना ये है कि मतलब कोई इंसान कितना भी ज्यादा सेल्फ मोटिवेटेड क्यों ना हो, पर उसको बाहर से कोई मोटिवेशन तो चाहिए ही चाहिए। उनको मतलब दिखना चाहिए, इंसान को दिखना चाहिए कि ये हम मतलब कैसे ये जैसे कि मैंने अभी एडवांस क्रैक किया, जेई एडवांस। सो उनको दिखना चाहिए कि जेई एडवांस क्रैक करने से क्या होता है, क्या मिलता है सबको। मतलब मोटिवेशन एक ऐसा एज अ रोल मॉडल मैं उनको दिखाना चाहता हूँ, मतलब कि क्या होता है आईआईटी, क्या मतलब एजुकेशन क्या होता है आगे बढ़ने से। मतलब उनको दिखना चाहिए, लोगों को ऐसे मोटिवेट होते हैं कि देखो ये बंदा इतना अच्छा पढ़ रहा है, इतना अच्छा किया, तो उसको लाइफ में क्या मिल रहा है, ऐसे क्या आगे उसको मिलेगा। विजय, उसकी आप पहली बार लाइव आ रहे हैं, लाइक राइट? आप पहले, दिस इज द फर्स्ट टाइम योर एफबी लाइव? नो मैम, सेकंड टाइम आई थिंक। सेकेंड टाइम, ओके। अब मेरा ये सवाल था, आप कैसे मोटिवेट करोगे? मोटिवेट करना चाहिए, बट आई एम नाउ थिंकिंग फ्रॉम योर एंड कि आप कैसे मोटिवेट करोगे आपके लोगों को, और कैसे उनको बताओगे कि भाई JEE इंपॉर्टेंट है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। JEE के अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है उस हिसाब से वो मेहनत करे। आप कैसे, व्हाट एक कुछ चीज बता सकते हो, व्हाट वुड यू लाइक टू डू एक्चुअली? सबसे पहले मतलब एक चीज तो
ये है कि लोगों को दिखना चाहिए, जैसे कि मतलब मेरी सक्सेस दिखनी चाहिए कि क्या मैंने अचीव किया, कैसे मेरी लाइफ कहाँ थी, कहाँ से आ गया, कितना आगे बढ़ गया मैं, और वैसे सबको दिखना चाहिए। क्योंकि अभी लोग ऐसे बिलीव नहीं कर लेते कि मैं अब बोलूँ कि पढ़ना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है वैसे। तो वैसे बहुत जो सेल्फ मोटिवेटेड है वो ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। पर जब हम दिखाते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि देखो मैंने ये अचीव किया है, ये लाइफ में मैंने मतलब इतना आ गया हूँ, तब लोग ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो फिर मैं वैसे मतलब अभी वैसे मेरी लाइफ में वैसे सब देख ही रहे कि मतलब कितना अच्छा कर रहा हूँ मैं, तो वो उनको भी मेरे मेरे आसपास भी लोग अभी जो मेरे गाँव में और मेरे उधर रहते तो बोलते हैं कि हाँ, जेईई में मुझे भी अब तुम उससे बोलना, गाइड करना कि मैं भी मुझे भी लोग आई एम श्योर बोलते हैं कि मुझे भी विजय जैसा करना है मम्मी। हाँ, वो बोलते हैं कि नहीं तुम भी, ये तुमने कौन सी एग्जाम दी थी, क्या है उसमें, क्या रहता है, सब बहुत लोग पूछने आते भी है कि जब मैंने उनको बोला कि मैंने ये क्रैक किया है, और लोगों ने बोला कि उन्होंने मतलब मैंने जेईई एडवांस क्रैक किया, या कोई भी, तो वो लोग बोलते हैं कि मैं मेरे बच्चे को भी मुझे इसमें डालना है, तो मुझे भी इसमें जाना है। आप छोटे से वीडियोस बनाना शुरू कर सकते हो, अपने पॉडकास्ट बनाना शुरू कर सकते हो, वेर इन यू कैन स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल अबाउट इट, कि भाई कैसे, बिकॉज आप कैसे स्टडी को सिंप्लीफाई करो, टॉपिक सिंपल कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंपल तरीके से आप अपने छोटे से वीडियोस या पॉडकास्ट बना के भी आपके लोगों के पास शेयर कर सकते हो। जब आपका वक्त मिले यूट्यूब चैनल बना लो अपनी, यस मैम, डेफिनेटली। है ना। सो आई थिंक आई एम श्योर मेनी ऑफ देम वुड बी इंटरेस्टेड। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिटी तो आपको पार्टिसिपेशन करे, लेकिन आप एक स्टेज पे जब आप आए, इन सब में आप लोगों को कहीं पे भी ये नहीं लगा कि मैं थक गया हूँ, अब मुझसे नहीं होता, मेरे से अब ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज वेरी डिप्रेसिंग, ऐसा कहीं पे भी नहीं लगा विजय? मैम जैसे मेरी बात मैं करूँ तो आईआईटी जेईई एडवांस की स्टडी बहुत रिगरस होती है, मतलब बहुत ही एक डिटरमाइंड माइंड चाहिए होता है इसमें। तब मुझे भी ऐसे कई बार लगा, बहुत बार लगा कि क्या है ये, क्यों इतना ज़्यादा मेहनत और क्या है। तब लोगों ने मुझे भी, मतलब मेरे सर है, मेरे अमी मैम है, सब ने मुझे भी बोला कि नहीं ये ज़रूरी है, तुझे अभी पता नहीं चलेगा पर यू विल हैव टू स्टडी, कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है। ऐसे मोटिवेशन चाहिए रहता है सबको। ऐसा तो मतलब आपकी बात बिल्कुल सही है, बहुत सारे लोग हैं जो कि इस तरह बोलते रहते हैं फैमिली में, सोसाइटी में, लेकिन उसके बावजूद भी यंगस्टर स्टूडेंट्स पढ़ाई करते करते डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि ये आई एम श्योर आप जो तीनों जो कर रहे हो वो बहुत बड़ी बात है। एंड मुझे कहीं पे भी आपके स्टेज पे ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि आप लोग हताश हो या हार गए हो, या मतलब हार के आगे जीत है वाली कहानी नहीं लग रही आपकी कहीं पे भी। तो मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मतलब लोग, ये स्टडीज रहती है ऐसी होती है कि लोग डिप्रेस हो जाए और वो होता है, बट लोग डिप्रेस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो लोग शेयर करना, मतलब किसी इंसान या किसी को शेयर करना, मतलब वो शेयर नहीं करते हैं, और अपनी प्रॉब्लम्स बताते नहीं है, और खुद सॉल्व करना, मतलब अच्छी बात है खुद सॉल्व करने का, बट जब टाइम आए तब बताना भी चाहिए अपने पेरेंट्स या किसी गाइड या किसी को, तो उससे मतलब ज़्यादा हेल्प मिलती है उन लोगों को। बिल्कुल सही कहा आपने, एक लाइट हाउस होना ये बहुत जरूरी है कि आप अपने जब भी कोई प्रॉब्लम्स आए, थॉट्स आए, तो आप किसी के साथ शेयर कीजिए, ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जिसको आपकी जर्नी पता हो और वो आपको मोटिवेट कर सके आगे, आपको आपका कंटिन्यूस रास्ता दिखाते जाए। एंड दैट इज वाई विजय, मैंने आपको बोला कि यू नीड टू बी अ लाइट हाउस। लाइट हाउस जैसे एक जगह पे खड़ा है और कंटिन्यूसली रास्ता सबको दिखाता जाता है, बिना हिले बिना डुले, पूरी सारा चीज एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर भी आगे लाइट दिखाता रहता है सबको, एक रास्ता दिखाता रहता है, एक पथ दर्शक की तरह काम करता है। So I am sure the Amiben has been your lighthouse, and you need to be, and your teachers who were teaching you the technical subjects, they're your lighthouse. So you need to be a lighthouse when you move further. ये बात पे I would like to ask a question to Mayuri. What is the role of mental strength and determination in your success, Mayuri? हम mental strength की बात कर रहे हैं कि कितना important है mental strength हर एक की life में। तो फ्रॉम वेयर डू यू, व्हाट इज द सोर्स ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ? आप कहाँ से मेंटल स्ट्रेंथ लेते हो? व्हाट इज योर सोर्स ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ एंड हाउ, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू गिव योर in your success? Okay, so my source of mental health was Ami ma'am, Sudeshna ma'am, and all my like my friends,
and I used to have I used to have a sir who used to come and teach me. So all of them, because there were a lot. So basically, I was a science student, so I was facing a lot of issues. So they were my mental health. मुझे कभी भी कुछ भी feel होता था, I used to be very open with them, and I believe कि this is something जो मेरी life में बहुत important रहा है, because as सबने बात की, विजय ने बात की, सबने बोला कि बहुत वो you feel depressed, and ऐसा एक टाइम आ जाता है, स्पेशली जब विसामो में थे तो बहुत ही ऐसा होता था, बिकॉज एज आमी मैम ने बोला, मैनेज करना पड़ता था स्टडीज विथ विसामो के इवेंट्स एंड ऑल, तो ऐसे टाइम आता था, बट एवरीवन एट विसामो वाज सो सपोर्टिव, एंड so yeah, they were my mental health, and of course my parents, and all the people who were working hard for me. So it actually, it depends कि आप कैसे लेते हो. So I always took that as my inspiration. As my हाँ, तो yes. सही बात है मयूरी, आपने जो बोला कि it all depends upon you how you take it. That's very important, and you took it to get inspired from it. एक चीज है which I am now trying to see, and I've observed in all 4 of them. अमी बहन ये चारों जो हैं इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं, and they are very good with Hindi also, and I'm sure they all come from the very Gujarati background. Yes, तो ma'am. हाँ, और इनकी देयर कॉन्फिडेंस लेवल, और कहीं मुझे ये लग रहा है कि ये बच्चे कहीं ना कहीं अपने बैकग्राउंड से डिस्कनेक्टेड भी लगते हैं, कि क्योंकि इतने साल इतने एक अलग एनवायरनमेंट में रहे, सब जब वापस अपने घर जाते हैं तो उनको ये लगता है कि हाँ, ये भी दुनिया है और इस दुनिया को हमें सपोर्ट करना है, और इसमें यहाँ पे जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाना है, हमारी तरह ही हमें आगे बढ़ाना है. तो अम्मी बहन, आपको मेरा एक बहुत सिंपल सवाल है, आप क्या कहना चाहेंगे? और बिकॉज आपने तो हर किस्म के पेरेंट्स देखे हैं, ऐसे भी पेरेंट्स देखे हैं जिन्होंने मना कर दिया कि नहीं मुझे मेरे बच्चों को नहीं पढ़ाना, फिर भी आप लोगों ने जिद करके उनको पढ़ाने पे मजबूर किया. आई रिमेम्बर जब आपने जब एक बार मुझे इन्वाइट किया तब मैंने ये ऑब्जर्व भी किया था कि पेरेंट्स धीरे धीरे आप लोगों पे ट्रस्ट बिठाते जाते हैं, और आप लोगों का एफर्ट्स काफी जाता है टू एक्सप्लेन टू पीपल दैट you are all doing good karmas and you are supporting their kids. So what message would you like to give to your current Visamo parents, yeah, for that matter any parents who come from a less privileged background, a financial background, and फिर भी उनकी इच्छा है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े और हमारा नाम कमाए और हमें कहीं ना कहीं take us with lot of pride. So आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? मैम, ये सारे अभी विसामो में जो पेरेंट्स है, सबसे पहले तो मैं उनको सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये सारे बच्चे ये सब अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, बच्चों ने जो लाइफ में जो हासिल किया है वो उन्हीं की वजह से है, क्योंकि 5 साल का बच्चा, उसके पास कोई फोकस नहीं होता, कोई दिशा नहीं होती है, बस ये पेरेंट्स का डिटर्मिनेशन होता है कि मुझे मेरे बच्चों को लाइफ में कुछ बनाना है, और ये बच्चों को यहाँ पर विसामो में हम पे ट्रस्ट करके छोड़कर जाते हैं. तो सबसे पहले उन्हीं पेरेंट्स को थैंक यू. और मैम, जैसे ग्रेजुअली अगर एक बच्चा विसामो में आता है, उसको देख कर बहुत सारे पेरेंट्स तैयार हो जाते हैं कि हमें भी हमारे बच्चों को विसामो में रखना है. और फिर ये जो हम एक टेस्ट लेकर बच्चों को एडमिशन देते हैं, तो काफी पेरेंट्स, बस सबसे जरूरी पहली बार किसी को अप्रोच करना सबसे डिफिकल्ट काम है. कोई एक रीजन से, कोई एक जगह से एक बच्चे को लेकर आना. जैसे मयूरी का एडमिशन हमने किया था, हमने बहुत सारे पेरेंट्स का, बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू पूरे कच्छ में घूम के, कम से कम 8 से 10 जगह पे घूम के हमने इंटरव्यूज किए थे. सिर्फ और सिर्फ मयूरी के पापा ने उसी टाइम पर बोला था कि मैं मेरी बेटी को पढ़ाना चाहता हूँ, मैं आगे लेकर आना चाहता हूँ. और ये जैसे विजय, अर्पित जो जगह से है, वहां पर पेरेंट्स मतलब पढ़े लिखे पेरेंट्स है, मिशनरी स्कूल्स में पढ़ के, पर सिर्फ ग्रेजुएशन तक, और एक ही एम होता है कि अगर हम ग्रेजुएशन कर ले, हमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा. उसी जगह से उसके पेरेंट्स ने बोला कि एक ही बच्चा है, उसके भाई बहन कोई नहीं, एक ही बच्चा, और उसको यहाँ विसामो में छोड़ा कि हमें ये जो गवर्नमेंट जॉब नहीं, उसको लाइफ में हमें कुछ और बनाना है. विजय और उर्मिला के पेरेंट्स गांव में इतना कोई
एजुकेशन का कोई माहौल नहीं है। विजय का भाई खुद उसने JEE मेंस एग्जाम दिया था, पर वो आगे एडवांस नहीं दे पाया। उसी जगह के बच्चे को उसके पेरेंट्स ने विसामो पर भरोसा करके यहाँ पर छोड़ा। और उर्मिला के गांव में बस अगर आपने साइंस लिया है आप नर्स बन सकते हो, उसकी बहनों को नर्स बनाया। पर उर्मिला में पोटेंशियल था, उसके पापा ने उसको, बाकी भाई बहन को नहीं, पर उर्मिला को विसामो में छोड़ा और उर्मिला आज डॉक्टर बनने जा रही है। मतलब ये पेरेंट्स अगर डिटरमाइंड है तो ये बच्चे लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर ही सकते हैं। मैं तो यही कहूंगी पेरेंट्स को कि हिम्मत करिए। एक जो मोह होता है बच्चों में, प्रेम और मोह दोनों अलग चीज है। मोह है उसको छोड़िए, सिर्फ प्रेम करिए बच्चों को, बच्चों के फ्यूचर को प्रेम करिए और उसको ऐसे जहां पर अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पर भेजिए। बिल्कुल सही अम्मी बहन। इवन जो फेसबुक पे भी मैं बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स देख रही हूँ। In fact, kids, I would like to tell all 4 of you that you seem to be very confident to not only me, but to all our viewers who are here. And they are also telling that, yes, you are all trying to achieve something which is extraordinary. Maybe at present you will not know it, but once you grow and when you try to help others, I'm sure make many of them from ordinary to extraordinary. And people are congratulating you for your success. एंड सुदेशना जी ने बहुत अच्छी तरह से मेंशन किया है अर्पित आपके आइडिया आज इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी बाय इंक्रीजिंग एक्सेस के बारे में एंड ऑल्सो आई रियली अप्रिशिएट कि एक चीज है जो इम्पोर्टेंट है एट द एंड ऑफ द ऑलमोस्ट 1 आवर होने लगा है हमारे सेशन का। सो इन द एंड लाइक पार्टिंग नोट पे मैं आप सबको एक चीज पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्या एक शब्द है दैट यू वुड थिंक ऑफ योर लाइफ एट विसामो एंड कैन इंस्पायर अदर्स टू टेक सपोर्ट ऑफ सच एनजीओज फॉर देयर ग्रोथ। बिकॉज देखो आज हम जिस पेज पे जिसके साथ लाइव हैं, चाहे वो कर्मा हो या लासी हो या विसामो, हम तीनों जो एसोसिएटेड हुए हैं, एंड चाहे रोटरी है, अस्मिता है, ये सारे जो हम लोग जो एसोसिएटेड पार्टनर्स हैं, आज रोटरी भी है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कर्मा है, सो ये सब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो है दे नीड टू कम टुगेदर एंड सपोर्ट सच काइंड ऑफ कम्युनिटी टैलेंट। तो आप लोगों को ऐसा क्या एक शब्द है जो आप कहना चाहोगे? आई थिंक इफ यू हैव 1 sentence it's okay, but I would prefer 1 word that you think of your life at Visamo that can inspire others to take support of such NGOs. Because अमी बहन ने कहा ना कि सबसे पहले अमी बहन ने ये नहीं कहा कि हाँ मैंने कितनी मेहनत की इन बच्चों के पीछे, अमी बहन ने स्टार्ट किससे किया? आई थैंक द पेरेंट हु ट्रस्टेड देम एंड अपने 5 साल के बच्चों को हमारे पास छोड़ा। बहुत कम पेरेंट्स है, बहुत कम लोग हैं अपनी मोह माया से बाहर आते हैं और बच्चों को अपने से दूर करते हैं, और कई बार इसलिए दूर करना पड़ता है क्योंकि हम उनकी ब्राइट फ्यूचर को देखते हैं आगे, और अपने दिल को कोई भी माँ नहीं चाहती कि अपने बच्चे को, इवन जैसे मेरा बेटा भी नेदरलैंड्स में पढ़ाई कर रहा है तो मैंने भी उसको 1 साल से देखा नहीं है, पर माँ का दिल तो बोलता है कि नहीं आजा बेटा, कोई भी फ्लाइट मिले आजा, लेकिन साथ में ये भी जानती हूँ कि उसका फ्यूचर उसकी पढ़ाई में इम्पोर्टेंट है, तो इट्स इम्पोर्टेंट दैट ही स्टेज देयर एंड टेक्स केयर ऑफ हिमसेल्फ एंड साइमल्टेनियसली बिल्ड हिज ओन फ्यूचर आल्सो। सो एक माँ का दिल तो हमेशा कहता है, तो एक ना एक वर्ड, 1 word, can we start with Arpit? What is your 1 word? मुझे तो सब एक ही चीज बोलना है कि जो भी कुछ करो अपने मन के हिसाब से करो, क्योंकि किसी को भी जबरदस्ती कुछ भी कराएंगे तो वो लोग करेंगे नहीं। कितना भी आप पढ़ा लो, दिन रात कुछ भी कर लो, पर वो लोग पढ़ेंगे नहीं। उसकी मर्जी में, उसकी मर्जी से जो भी करना है वो करेगा, तो वो फट से 1 घंटे में पूरा कर सकता है। तो मेरे हिसाब से वही है कि जो करना है वो खुद से करो। आई मीन ये है कि जब अर्पित ये कहना चाहता है कि जो है वो आई थिंक 1 thought is more important rather than me telling them to give 1 word, so I reframe my question कि instead of 1 word you can also talk about 1 thought, and he says कि जो करना है इसलिए करना है क्योंकि तुम्हें करना है and your determination is more important, and once people see determination in you then all the other people will come over to help you. अगर आप ही डिटरमाइंड नहीं है तो जैसे आपने एक बार चीज बहुत अच्छी बताई थी कि आपके पीछे बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया है, वो एक आदमी के पीछे क्यों इन्वेस्ट करेंगे? अगर उनको पता है उसका फ्यूचर ब्राइट करने वाला है तो इन्वेस्ट करेंगे, अगर वो उठ के डिप्रेस होकर सुसाइड कर देने वाला तो किसी का इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब नहीं है। एंड यू नीड टू सेट एन एग्जाम्पल। बहुत सही बात कही आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा उर्मिला की तरफ आता है। उर्मिला, व्हाट इज योर 1 word, व्हाट इज योर 1 thought? विसामो, there is only 1 word, it's a family, it's a big family, इतनी बड़ी family है।
सब कोई ना कोई आपको सपोर्ट करने के लिए सब है, जैसे कि गुरु माता है, दे एक्ट एज मदर्स, देन अमी मैम है, फिर किचन स्टाफ जो आपके लिए हर वक्त रेडी है। मैं लेट ट्यूशन से आती हूँ तब भी वो लोग रेडी है। देन देयर इज कालू भाई जो मेरे को इवन छुट्टी के दिन रखने आते हैं। वो लोग इतना सपोर्ट, दे आर जस्ट लाइक फैमिली। फैमिली से भी बढ़कर है मेरे लिए हेमंत सर, दीपक भैया। वो लोग पढ़ाने के लिए लेट लेट नाइट तक, मतलब दे आर विलिंग टू डू एनीथिंग फॉर यू। वो लोग आपको इतना सपोर्ट इतना दे रहे हैं, तो फिर जस्ट आप आ जाओ इधर, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी ऐसा हो। सो मैं आपको आज के सेशन जो स्ट्रेंथ सीरीज का जो 3rd एपिसोड है उसमें जो हम बीइंग अनस्टॉपेबल जो हमारा टॉपिक है, उसका रीजन ही ये है ये टॉपिक लेने का और आप लोगों को इनवाइट करने का कि विद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन विद एनजीओ, चाहे वो विसाम हो या कोई भी एनजीओ जो बच्चों में, हम चाहते हैं कि सारे एनजीओ भी बच्चों के फ्यूचर में इन्वेस्ट करें। And that is the main purpose कि we have got these 4 people who have already set a very good example कि बच्चों के future, the best investment is investment in the future of student kids education। बोल रहा कि यहाँ तो दो, इसलिए हमने एक बैलेंस अप्रोच रखा है, 2 लड़की को बुलाया 2 लड़कियों को बुलाया है। So it's not only about girl education, it's about education per se। So I'm coming to you Vijay। So sorry, विजय का हो गया ना? नहीं मैम, बाकी है। हाँ, आई एम कमिंग टू यू विजय। यस विजय, व्हाट इज योर वन वर्ड? so कई बार ma'am, आई गेट सो ओवरवेल्म्ड कि मैं अपने थॉट्स में इतनी हो जाती हूँ कि आप लोगों की जो बातें मेरे दिमाग में अभी भी घूम रही है, एक एक बात जो आप लोगों ने शेयर की वो मेरे दिमाग में घूम रही है। सो आई एम श्योर विजय आप बताइए व्हाट इज योर वन वर्ड? तो मैम मैं आपको यही बोलने वाला था कि वन वर्ड इज इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब विसामो। सो मैम मैं एक बार टीवी पे देख रहा था कि एक बहुत बड़ी फैमिली है, अराउंड 200 मेंबर्स, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। तब वो फैमिली को देखकर मुझे ना विसामो याद आ रहा था। तो मैं यही डिस्क्राइब करना मतलब यही मैं बोलना चाहता हूँ कि मतलब इतनी बड़ी फैमिली देखकर मुझे विसामो ही याद आ गया था डायरेक्ट। तो इट्स बहुत सही बात है कि भाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर अ पार्ट ऑफ अ बिग कम्युनिटी। एंड वो बिग कम्युनिटी कब आपको फीलिंग आएगी? जब एक कम्युनिटी एज अ फैमिली, जो बोलते हैं ना वसुदेवम कुटुंबकम, यू नो योर होल वर्ल्ड इज योर फैमिली, वो तभी पॉसिबल है जब पूरी दुनिया आपके वेलफेयर में इन्वेस्ट करे और आप सामने दुनिया के वेलफेयर में इन्वेस्ट करो। यू शो कंपैशन and you get compassion, you show love and you get love। एक बात जो कहते हैं ना, what we give we get it back। so कहीं ना कहीं हमारे पास्ट कर्मास में भी आपने कुछ दिया होगा जो आपको वापस मिल रहा है, and that's where you get such a wonderful community feeling and loving। Mayuri, what about you? Okay, so one word or a thought which comes in my mind is faith and belief, 2 words। So Karma Foundation, Bisamo Kids, that are mentors, Ami ma'am, Sudeshna ma'am, Aap, and Deepak Bhaiya, and my school, and everyone, friends, you know, they play a very important, वो जो हम पे believe करते हैं, हम पे faith करते हैं, that pushes us forward। And so yes, that is one word how I describe। So nice। So nice Mayuri, I would really love to meet you in person someday। आप चारों को कभी मैं in person मिलना चाहूंगी। अभी तो ग्रुप फोटो ले नहीं सकते, अभी तो खाली प्रिंट स्क्रीन ले सकते हैं, बट आई वुड लाइक टू एक्चुअली मीट यू गाइस समडे। अमी बहन, एक आपके लिए एक चीज है जो मुझे पूछनी है। आज विसामो में आप जो बच्चों को संभालते हैं, और मैं जानती हूँ जब आपके बच्चे जब स्कूल्स में जाते हैं, बिकॉज मेरे पास भी विसामो के बच्चे थे, एंड तो आपको वहां से, आपके लिए तो विसामो के लिए तो मैं आप पूछ नहीं रही कि आपके लिए क्या वन वर्ड है, आप वो भी बता सकते हैं, लेकिन हाउ डू यू गेट सपोर्ट फ्रॉम दी स्कूल्स, बिकॉज दे ऑल गो टू नॉर्मल schools, they all go to normal I mean schools, you know, and you get that support from them, and that is where they are able to build a lot of their educational needs, fulfill their educational needs। so any word for this all these schools from your end, and about this life in Visamo, how we can encourage other NGOs to do some such similar work? मैम ऑल सभी स्कूल्स का सपोर्ट, बहुत वंडरफुल सपोर्ट फ्रॉम ऑल द स्कूल्स। उन्होंने कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया विसामो के बच्चे और नॉर्मल बच्चों में, और जो नॉर्मल बच्चों को मिलता है शायद उससे ज्यादा उन्होंने विसामो के बच्चों को दिया है। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल द पार्टनरिंग स्कूल्स। और विसामो मेरे लिए दूसरा घर है।
और मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि महाभारत में गांधारी के 100 बच्चे थे और मैं विसामो की गांधारी हूँ और मेरे 100 से ज्यादा बच्चे हैं और ये बच्चे मुझे बहुत प्रेम करते हैं और मैं भी मेरे लिए ये मेरा दूसरा घर है। और मैं ये बच्चों को एक ही बात बोलना चाहूंगी कि जो आपको मिला है आप प्लीज गिव बैक टू द सोसाइटी। दैट्स ऑल मैम। थैंक यू सो मच एंड आई एम श्योर आज ये कितना वंडरफुल सेशन हुआ है। जो लोग आज लाइव देख भी रहे हैं, जो ये लिंक में भी इसको देखेंगे, आप प्लीज उस लोग हर एक बच्चे के साथ शेयर कीजिए ये चीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चों के पेरेंट्स बहुत सारी चीजें उन्हें प्लेटर में दे देते हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उन्हें ये फील आती है कि हमें कुछ नहीं मिला। एंड आपको एक बात सबने नोट की होगी कि ये चारों बच्चों के मुंह से कभी आपने ये नहीं सुना कि हमें कुछ नहीं मिला। दे हैव ऑलवेज सीन व्हाट दे हैव गॉट। इंपॉर्टेंट है आपके पास क्या है और आपके पास आपको क्या मिला है और उससे आप क्या कन्वर्ट कर पा रहे हो। आपके पास 10 रुपए हैं, आपने उसका वैल्यू इज इंपॉर्टेंट, नॉट द अमाउंट। तो लोगों के पास लाखों करोड़ों भी हो जाए, लेकिन अगर उसकी वैल्यू नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। और वो किस तरह वो पैसे इकट्ठे हुए हैं, किस तरह वो इन्वेस्ट। और एक बात हमेशा समझना है कि जब आप कोई भी डोनेशन करते हो तो अच्छे कर्म क्या पैसा अच्छी जगह जब लगता है तब अच्छे काम ही होते हैं, अच्छे लोग ही इकट्ठे होते हैं और अच्छा काम ही होता है। So with this note, I thank all. I thank Facebook. I thank Karma Foundation. I'm Dr. Gitika Saluja to give me this opportunity to interact with. And Lassie Talk is my foundation where I talk about learn, act, share, inspire. I'm a Rotarian, so I'm thankful to Rotary Club Asmita also to be associated with such kind of wonderful activities. And because of all the associations and this initiative immediately picked up by Visamo, that we will ensure that आज मैं भी पहली बार इन बच्चों के साथ बात कर रही हूँ ना। पहले मैंने फोन पे उनके साथ बात की है ना मैंने उनके साथ कोई इंटरेक्शन किया है। बट मुझे भी थोड़ा सा डाउट था कि बच्चे कैसे होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे कि नहीं, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप का जवाब में भी कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने फोन पे भी उनसे बात नहीं की है। तो आज का सेशन कैसा रहेगा, आई टेल यू, कहीं ना कहीं डर नहीं था, कहीं ना कहीं बोलते ना अंदर से वो वाइब्स इतनी पॉजिटिव आ रही थी कि चलो करते हैं, मजा आएगा। एंड आई एम श्योर इट्स सच अ वंडरफुल लर्निंग एक्सपीरियंस। कोई ये नहीं बोलेगा कि 18 साल के बच्चे लोग हैं, 18 से 20 साल के, आई थिंक 17 to 18, 17 to 20। अर्पित, यू इज 20, व्हाट इज योर एज? अर्पित आप म्यूट हो। 22। उर्मिला आपकी क्या एज है? 19। विजय आपकी क्या एज है? 20। एंड मयूरी आपकी क्या एज है? मैम 20। सो देखिए इतने यंग बच्चे हैं और दे हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, दे नो व्हाई दे आर डूइंग। इवन उनको कोई समझाने नहीं बैठा ये सब चीज, इनके माँ बाप ने भी शायद इतनी सारी बातें नहीं की होगी उनके साथ, जितनी बातें ये खुद के साथ करते हैं। और जब खुद के साथ इतनी बातें करते हैं तो अपने आगे लाइफ का पाथ बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है। सो आई अगेन वांट टू से द स्ट्रेंथ लाइज हियर, strength lies here. That's important. Build up your mental strength, build up your emotional strength, and get success in this world. With this note, I end this live talk, and thank you everyone. Thank you each and every person who has been a part of this strength series. This is the 3rd episode, and we might join in the next Thursday as well with the 4th episode of strength series. Thank you so much.